ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी ना, सूर्या कुमार को फॉर्म में ले आएगी और इंडिया का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी, इंडिया को और भी कंफ्यूजन में डाल देगी, मुझे भाई वही आप लग रहा किसको ले। है। इवन भाई मुझे तो लगता है तिलक भी फॉर्म में आ जाएगा, ये दोनों। भाई इंडियन मैनेजमेंट को ये लोग बोलेंगे, ये लोग तो ऐसे भी कंफ्यूज है विद प्रॉब्लम ऑफ प्लेइंग, इनको और कंफ्यूज कर दो, ये 11 ही सिलेक्ट ना यार कर पाए भाई, रात रात भर रोते अरे रहे 11 क्या होगा तो सोच सोच के। देखो, सूर्या को आउट ऑफ फॉर्म भी इन्होंने ही किया था ऑस्ट्रेलिया ने। वो हम्म 0 पे आउट हुआ था थ्री सारी वो थ्री सीरीज के हैट्रिक अंदर, जीरोस। थ्री थ्री हैट्रिक जीरो और तीनों फर्स्ट बॉल। तो हम्म दिस इज लाइक, मतलब वो होता है ना कि आपका वापस तो होता ही है कि किसी ना किसी तरीके से, तो यू नेवर नो कि हो जाए वो। हम्म। तो बट हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, तो वो वाला हो जाएगा। I kept it only for the first two games only. Yeah, that is where the confusion is. Yeah. So let's talk about this now. I tried to make an 11, but I got confused in the middle actually. So I left it like that only. Now KL Rahul from the brink of actually not being part of the 11 for that Pakistan game. Had Shreyas Iyer not been, he's a survivor, the ultimate survival, KL Rahul. What do you say, Vishnu? Man, man, I don't know where he gets this luck from, actually. Man, 5 minutes pehle getting a chance and then scoring 100. Man, it's like unbelievable, man. And getting a captaincy just before the World Cup is like another level pe aa gaya yaar. I don't know Hmm. what the hell this team management is doing after 2019. Hmm. Yeah, they even actually we need to criticize Rohit Sharma here, man. After in early years after the World Cup, in early days only he got the captaincy. When he got that captaincy, he should have started preparation for the World Cup because he know the one thing Dhoni did very well before the 2011 World Cup is cutting down who can't be part of that World Cup, and he was well prepared just before the World Cup. He knows where the middle order is. He knows who are the ballers who can rely on in the middle overs, and everything was very organized and prepared. The only shocking where we were shocked because is that Rohit Sharma ka um exclusion of the 2011 World Cup. But then he wasn't even great that time, right? He wasn't Yeah. performing what Rohit Sharma used to perform. So fairly, he was dropped, and everyone was like, okay. But now this management, just before the World Cup, is like total confusion, man. No one knows what will be the middle order till date. I Hmm. think toss se pehle bhi they will just. I think they will go with the toss. Who will play in the middle Hmm. order? After checking, Huh. I'm totally confused, man. I can't even see who will play in this 11 now. First two Hmm. games. So Total Devanshu bhai, confusion, man. if you could hear, if you can hear me, Yes, 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 I yeah. can. So what's your reaction to this squad for the first two ODIs? uh, Speechless. I mean, they started playing well, and then they rested players. In fact, Hmm. if they wanted to have rested, they should have rested fast bowlers, not the best Yeah. batsmen. So Yes. I don't understand the reasoning behind it. Hmm. Uh, but Kuldeep Yadav's decision, I stand. I think it's good. Hmm. Hmm. So that's fine. And Yes. as you mentioned that Ajit Agarkar's press conference as well, Hmm. that Shreyas Iyer, he was very sheepish while replying on that, because Hmm. he himself, I think it's not going good on his part that the player is still injured when he was Hmm. part of Asia Cup team. So let's see how it goes. Hmm. I told you guys. I told you that Shreyas will get injured. I know. It doesn't felt right when he came directly into the squad. Hmm. And Yeah. one more thing, Hmm. Shikhar, I wanted to know from you what is this matchups thing just before the World Cup, taking Tilak in place of Samson because he's a lefty and he can bowl 4 overs. Hmm. And I can't understand what is your opinion on that, taking Tilak
like इतना importance क्यों just before the World Cup and matchups का इतना importance sudden में याद आ गया कि ओ तिलक है हमारे पास, he is a lefty so he can be that left hander in the middle order and who can ball 4-5 overs. What is your response on that? See, by all logic, Sanju Samson should have been selected for this because he has been playing ODIs consistently. Of course, our royalties like KL Rahul and Shreyas Iyer were injured, so Sanju Samson was becoming the main right-handed batsman. But now with Shreyas and KL coming in, now they are absolutely confused, and obviously they are not sure about our strength of our batting order. That is the most important thing. Otherwise this discussion would not have happened ki Shardul ko lena hai, Aksar ko lena hai, Ashwin ko lena hai. They are just looking for one batter, batter who can come down at 8 or 9. They are not actually discussing about the bowling skills at all, because we know agar bowling skills pe aata, so you would have thought about Chahal, you would have thought about Arshdeep, you would have thought about these players or Yeah. Prasidh Krishna. But these people are not even coming in the discussion. That shows ki we are tentative about our batting actually, and we are and the Bangladesh match actually showed ki we need a finisher at 8-9. And now with Hmm. all these things, actually they have spiraled into confusion by experimentation and over experimentation and injury. Obviously all these factors have led to this undercook. Although we won the Asia Cup comfortably, I'm not saying it was not comfortable as per me, because Sri Lanka match we were 214 all out. That was Yeah. not a convincing win. Kuldeep and Bumrah, yes, they were very convincing. Okay, but the Sri Lanka match and Haris Rauf injury, these were some of the factors that normally don't happen in an ODI tournament, which actually made our wins look very convincing and comfortable. But Yeah. yes, I'm happy that we won the Asia Cup. But I don't agree with Ajit Agarkar's statement that we got a good look at the players. You didn't get a good look at anyone, to be honest. Okay, and Means even if I you got agree a with good the look, it bowling was not a Shikhar. good look. Yeah, Like bowling में ठीक Jadeja's है we. performance was not good at all. Yeah. And yeah, so I don't understand now they are looking at Tilak because he's a lefty and he didn't perform that well against Bangladesh, where he got out to a debutant. If he was Hmm. making a debut, the bowler was also making a debut, Tanzim Hassan. Yeah. Okay, so there are a lot, and I don't know now why Rituraj is called up. The most important thing is, why is Rituraj called up after not playing any of the games leading up to the World Cup? Last year he was in ODI squad when he didn't get any chance. So That time there Okay. was no I experimentation. Yeah, Devanshu. so Rituraj is there because Rohit Sharma is not there, so as a backup opener. Hmm. But in that scenario, I mean, instead of having Rituraj Gaikwad, when there is a player who is playing continuously ODI like Sanju Samson, they Hmm. could have put Sanju Samson there as a backup opener and backup batsman, and he could Hmm. have opened also if required. Hmm. So Nahi, I Devji. just Devji, the problem here is uh, what happened is Ishant told in the post-match key he will play in the middle order for the World Cup. So he will be playing in the middle order for sure in the Australian series as well. So that is decided. कि Hmm. वो तो मिडिल ऑर्डर पक्का है, इतना Hmm. कॉन्फिडेंस है बोला उसने पोस्ट प्रेजेंटेशन में कि ही नोज हिज रोल. सो Hmm. हियर द थिंग इज ओके, ऋतुराज को ओपनर के लिए चांस देने मींस ओपनर के लिए ले लिया स्पॉट, बट आई Hmm. कांट अंडरस्टैंड तिलक और इवन स्काई मैन. आई कांट अंडरस्टैंड इवन स्काईज इंक्लूजन Hmm. बिकॉज ही वाज वेरी पुअर इन ओडीआईज, नहीं, वेरी स्काई पुअर. तो वर्ल्ड कप मैं स्क्वाड में है ना, उसको अभी तो या चांस देंगे ही. अब like क्या कर सकते हैं. मैं आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर इसका ये 2 मैच खेला या 3 मैच खेला, मेरे को 2 तो खेलेगा ही है, Hmm. Hmm. फर्स्ट 2. एंड Hmm. इफ ही फेल्स इन एनी ऑफ द मैचेस, ठीक Hmm. है, या फिर दोनों मैचेस, जो मुझे लग रहा है दोनों में फेल हो जाएगा, आई थिंक ही विल बी बूट आउट, ही विल गेट अ बूट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, बिकॉज देयर इज टू मच अनसर्टेनिटी ऑफ स्काई कि Hmm. भाई उसका क्या होगा. एंड Hmm. दैट इज व्हाई भाई मे बी
Yeah, let's say if Tilak plays na, then he will replace Kai. Yes, yes, correct, correct. That's why they are playing both Tilak and Sky. क्योंकि Sky का अगर जैसे ही कुछ डाइसी सा हुआ, they will immediately replace Tilak, Sky with Tilak. Because तिलक इज सच अ प्लेयर की मैचअप्स के लिए ये लोग देख रहे हैं ना, इट्स परफेक्ट, सिट्स इन देम द स्कोप में क्या है वो परफेक्ट है. लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्पिन ऑफ स्पिनर, तो He's काइंड ऑफ वॉशिंगटन. Suresh Raina. He's Suresh Raina, basically. या जैसा हाँ बट So- वही है ना, अभी एक ही ओडीआई खेला है वो, तो लेट्स सी, मतलब कि पोटेंशियल तो स्काई का भी बहुत ज्यादा है और तिलक का भी बहुत ज्यादा है. बोथ आर नहीं, हाई बट पोटेंशियल प्लेयर्स. स्काई और तिलक में देयर इज अ डिफरेंस. हम्म. तिलक एक ओवर भी डाल सकता है, 2-3, ठीक है, 2 तो डाल ही लेगा. स्काई इज अ लाइबिलिटी देन, इन दैट केस अगर वो बैटिंग नहीं कर पाता है तो कुछ तो एडवांटेज है तिलक को लेने का. हाँ, fair enough. Yeah, but Vishnu, coming to your question, really sad about Sanju Samson's and Yuzvendra Chahal, both exclusions, and Yeah, you know, why is he not in the team, man, in this team, just to give especially him when you are some? playing a reserve squad, and Yeah, Asia Cup के पहले आप बोलते हो कि both Ashwin and Chahal are still in the contention, but you pick only yes, Ashwin when you have yeah. no spinner in your squad, so you decide to pick only Ashwin, so that is यार bit. यू गाइस, मैंने इनकी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज भी देखा, दोस गाइस नॉट इवन सेड द नेम ऑफ सैमसन इन एनी ऑफ द स्क्वाड अनाउंसमेंट्स कि भाई ये हमारी कंटेंशन में, दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट सैमसन. सो आई थिंक एज एन इंडियन फैन आल्सो, और वी शुड आल्सो नॉट थिंक अबाउट सैमसन बिकॉज वो उनके प्लान में ही नहीं है बिल्कुल. यार प्रसिद्ध भी क्यों यार उसको? आई डोंट थिंक, बिकॉज द बैकअप इज शमी ऑलरेडी देयर. So instead of Prashid, they could have tried Chahal in the team. Or maybe if Mohsin was fit, maybe a lefty, any left armer instead of Prasidh, just to have कि भाई वो कैसे बॉलिंग कर रहा है, क्या सीन चल By रहा the है. way, guys, Deepak Chahar अभी बोला है कि I am completely fit. The timing of it. दीपक, अभी मैं क्रिक इन्फो का न्यूज देख रहा था तो दीपक चहर ने बोला आई एम कंप्लीटली फिट. तो वो तो ठीक है उसके लिए. आयर ने भी बोला था फिर. वो हर 6 महीना पे यही बोलते हैं. एनीवे, तो अभी टीम बनाते हैं, थोड़ा 11 बनाते हैं. तो क्या लगता है, ऋतुराज Okay. गिल ओपन करेंगे या इट विल बी ईशान ओपनिंग? बट यू सेड No, लाइक no, ईशान Ishan will सेड be middle order, man. Ishan will be Pakka middle middle order, order. and we have 3, 4, 5 as Shreyas, KL, and Ishan, right? Yeah, yes. And who will be number 6 now? if Shreyas fit, Hmm. एक एक्चुअली में नंबर 3 पे तिलक को कर दो. तिलक. हाँ. Okay. नंबर 3 या तिलक. तिलक और स्काई, मैन, उसके दोनों में के बीच में ही कोई ना कोई रहेगा. नहीं, But अगर तिलक आएगा तो फिर he will I bowl mean, as well. So So तिलक Shreyas, if he तिलक is not fit, will go for Tilak, Sky. right? और KL, Ishan और Sky होगा नंबर 6 पे. You think India will try to give Sky some chance, right? To यार do or die मुझे opportunity like maybe. विष्णु बट इज नहीं सेइंग होगा अबाउट यार, स्क्वाड ऋतुराज. चेंज नहीं होगा, स्काई विष्णु रहेगा स्क्वाड में, पता है, मैं श्योर विष्णु हूँ. Vishnu is saying about कि भाई Rituraj will open, but I have a feeling that they will go with Ishan. That यार they मुझे will. पक्का है कि नहीं, हाँ, यार हो सकता है पक्का है भाई. कि नहीं. ईशान को ऐसे ही फ्री में एशिया कप फाइनल में भी कोई जरूरत नहीं था उसको ओपन कराने का, ऐसे ही ओपन करवाते रहते हैं. वो ईशान को करवा देंगे. तिलक will come at 3, then KL, then they will play Sky, and ये जड्डू, वॉशी और अश्विन तो तीनों खेलेंगे. All 3 will play. All 3 will play. अच्छा. Yes. क्योंकि इनका Okay. बॉलर ही नहीं है ना और स्पिनर, कोई ऑलराउंडर भी नहीं है. So these 3 has to play. Okay. Yeah. So you are saying what do you say? I think Shardul will play. ठीक है. अश्विन को तो पक्का चांस मिलेगा यार. वॉशी को बिठा देंगे ये लोग. अश्विन विल हाँ प्ले. तो अच्छा, बुमराह अश्विन तो will श्योर play. खेलेगा. एनीवे उसका ज्यादा कोई मैच गेम टाइम नहीं हुआ है.
Yeah. बुमराह और सिराज दोनों। बुमराह सिराज, ओके। Yeah. कितने हो गए ये? तो 2 and ये 4 6 6 and 5 11। हाँ ये हो गए, 11 हो गए। ईशान 2 बार है तो यू नीड टू रिमूव ईशान, हाँ ईशान। मतलब ओपन करेगा तो नहीं तो कौन हाँ, खेलेगा? देवांशु भाई आप क्या बोल रहे थे? ईशान अगर इसका वो है, ओपन इसका करेगा है, तो कौन खेलेगा? इसका ही आएगा ना। नहीं, स्काई तो स्काई एनीवे ऑलरेडी खेलेगा है। ही। हाँ तो ये ईशान तिलक को आप आएगा हटा शायद में भी। ईशान को आप तिलक। हटा दो, मैं बोल रहा हूँ वॉशी भी खेलेगा। वॉशी विल बैट एट 6 अच्छा आप अहेड ऑफ बोल रहे हो जडेजा। वॉशी भी खेलेगा? हाँ ठीक है। वॉशी, जडेजा एंड अश्विन ऑल थ्री विल प्ले एंड शार्दुल, बुमराह, सिराज। तो 3 स्पिनर्स, 3 दी सीमर्स। ओके तो ओके। ये मेकअप रहेगा टीम का। अच्छा अच्छा, समझ ओके। गया मैं। ठीक है ठीक है। बिकॉज दे ठीक। वांट टू सी बोथ वॉशी एंड अश्विन हाउ दे आर बॉलिंग। तो वो दोनों मैच खेलेंगे। मुझे लगता है दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, दोनों नहीं खेलेंगे मुझे लेकिन लगता है। फिर उनके पास 2 ही स्पिनर रह जाएंगे। जडेजा अश्विन, बस दो ही है ना? हाँ, हम्म। देयर इज नो अदर स्पिनर। तो इसलिए उनको सुंदर को खिलाना ही पड़ेगा, वॉशी को। ओके। तो वॉश, जडेजा, वॉशी, अश्विन एंड हम्म बुमराह सिराज, दिस विल बी द बुमराह, सिराज, शार्दुल। So what you do, बुमराह सिराज एंड शार्दुल। शिखर ओके वॉशी गॉट का इट। नाम निकाल के ईशान के पास डाल दो। हाँ That's समझ गया मैं। हम्म। ईशान की जगह वॉशी कर दो वो। समझ गया, आई गॉट इट। ठीक है। एनीवेज, तो बट और कुछ डिस्कस करते हैं यार। हम तीनों ही एक्चुअली सबसे ज्यादा इंडियन स्क्वाड के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं डिस्कस करने के लिए, इसीलिए अच्छा है हम तीनों आज फाइनली ज्वाइन किए हैं ये आई वीडियो। थिंक वी कैन डिस्कस अबाउट राहुल द्रविड़ आल्सो यार। आई एम फेड अप ऑफ दैट गाय, टू बी हम्म ऑनेस्ट। वो क्या चाहता है एंड व्हाट इज हिज एंड गेम। मतलब मुझे लगा कि एशिया कप में देयर इज अ स्क्वाड दैट हैज बीन सेटल्ड एंड फाइनली देयर। हम्म अभी ये 3 गेम और खेलेंगे टुगेदर, तो दे विल मतलब बेसिकली सब अपने रोल्स को समझ पाएंगे एंड एवरीथिंग। मे बी श्रेयस फिट हो गया तो वो रिप्लेस हो जाएगा टीम के अंदर एंड ऑल दोस थिंग। हम्म बट इतना सारा चेंज कर दिया 2 मैच के लिए। एंड हम्म रोहित एंड विराट को ऐसे कौन से रेस्ट की जरूरत है? हार्डली दे प्लेड यार। ठीक है, हम्म फाइनल में भी व्हाट दे डिड दे बैट नथिंग। हम्म। क्या मतलब है इतने रेस्ट का? आई फाइनल मीन और श्रीलंका वाले मैच में भी दोनों जल्दी आउट हो गए थे। मतलब रोहित ने 10 ओवर खेला था, कोहली ने तो 10 बॉल में ही आउट हो हम्म। गया था। तो हाँ, तो इवन इन बांग्लादेश ऑल्सो, बांग्लादेश मैच ऑल्सो व्हाट दे गाइस डिड। तो हम्म, मतलब ऐसा उनके ऊपर मेंटली कोई फ्रेश लोड। रखना चाहते हैं, मेंटली फ्रेश। यार मुझे बताओ, आई मीन मेंटली फ्रेश, इफ यू हैव वन एन टूर्नामेंट, aren't you mentally fresh already? सपोज सपोज आप ऑफिस जाते हो जॉब करने के लिए, तो आपके जॉब वो बॉस बोलते हैं आपको कि भाई तू 2-3 दिन अभी ब्रेक ले ले, मेंटली फ्रेश हो क्या। ऐसा कभी सुना है आपने? भाई मेंटली फ्रेश रखना है तो एशिया कप भी क्यों खेले, वहां से ही रेस्ट ले लेते साला। क्यों देखो, खेलना यू है एशिया नीड कप। यू नीड मेंटल ब्रेक when हम्म either you are not performing well or you have been playing so much that there is a chance कि भाई you can get injured, muscle pull and everything, so just get a break and everything. Here हम्म they are not even playing continuously, ठीक है, या फिर उनका हम्म कोई खराब फॉर्म चल रहा है, तो why are they taking a break? There is no, I हम्म this is beyond मतलब बोलते हैं ना साइंस। what are they हम्म trying to achieve here? this is हम्म this मुझे is लगता है ये so साला राहुल द्रविड़ से कोई डरता नहीं है। साला कल शाम को शॉपिंग जाना है तो चले जाते हैं शायद, इसको बोलते भी नहीं है। साला हम्म इसलिए कुंबले अच्छा था, सभी को पकड़ के so this बिठाता is why था। they don't want hard task masters like हम्म। Kumble हम्म or Greg Chappell. They हम्म want someone who is easy and मतलब like a friend and everything. But I हम्म think या for Indian cricket, I think अभी ग्रेग चैपल तो मुझे भगवान लगता है कि उसने मतलब है हम्म ना क्या कर दिया था कि पूरी टीम मतलब जेल अप हो गई उसके अगेंस्ट, चाहे वॉट एवर इज द रीजन, बट हम्म एटलीस्ट ही मेड देम यूनाइटेड। तो हम्म इधर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं है। हम्म एंड फिर दिस ऋतुराज गायकवाड़ थिंग, आई कैन नॉट ब्रिंग माई हेड अराउंड कि भाई ये हम्म इसको क्यों लेकर आए। ये मतलब हम्म खेला भी नहीं है, उसका कैंप चल रहा है,
ये अपनी टीम के साथ रहता, वहां पे थोड़ा उनके साथ हाँ जेल करता वो तो अपना तो ठीक है। टीम के एक्चुअली द एशियन गेम्स एंटायर स्क्वाड इज एट एनसीए बैंगलोर। एंड हाँ वहां पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों इसको 2 ओडीआईज के लिए साथ में घुमा रहे हैं। वो भी कहाँ कहाँ, इंदौर और कहाँ वो मैच है भाई, वहां उतना दूर मोहाली में लेके जाएंगे, मतलब कोई पॉइंट हाँ नहीं है मतलब। मतलब देर इज नो लॉजिक। अब हम्म सब सैमसंग के लिए बोलना ठीक है, अब वॉट एवर इट इज दैट इज गॉन एंड गॉन, हम्म बट इनफैक्ट चहल इज ऑल्सो इन यूके इन प्लेइंग काउंटी, या तो उसका भी अपना है चल रहा है, तो आई थिंक ही इज प्लेइंग वॉट एवर इज दैट, बट दिस ऋतुराज थिंग that shocks me, and even Ashwin one is both at the end of the day it's like Harry Brook same हम्म situation हो रहा है। they know हम्म कि they had a player like Harry Brook outside हम्म and वो उसका हमेशा रहेगा सिचुएशन कि उसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया। इसको हम्म WTC में भी बाहर कर दिया था अश्विन को, लोगों ने पूछा जब अश्विन था तो तुमने WTC में क्यों नहीं खिलाया। फिर अभी वर्ल्ड कप में भी क्वेश्चन हो जाएगा कि यार तुम्हारे पास अश्विन था, तुमने अश्विन को क्यों नहीं लिया। तो दे आर लाइक वो सेविंग देयर उनको एस। समझ में नहीं आ रहा, हाँ उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। अगर ये 16 प्लेयर टीम होती ना स्क्वाड, तो अश्विन वुड हैव बीन देयर। Guys, तो one more thing and we are forgetting उन्नतखड़ खेला था यार recently वेस्ट इंडीज में। हाँ यार एंड वो वो तो प्रसिद्ध वो तो फिट अब होते मुझे ही साला उसको बगल में बिठा दिए। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कॉस्ट सेविंग मेजर था कि एक प्लेयर को क्यों लेकर आया, इसी को खिला लेते हैं, ये यहाँ पर ही है तो। अच्छा, अभी देवांशु भाई आपने बोला ना, तो मैं रियलाइज किया हम्म, कि चहल प्लेइंग काउंटी क्रिकेट कुड बी अ रीजन व्हाई ही इज नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने के बाद ही हार मान गया था और बोला था मैं तो जा रहा हूँ काउंटी क्रिकेट खेलने। इनफैक्ट संजू हाँ कौन। सैमसन को भी काउंटी डील मिला था। आज मैं पढ़ रहा हम्म था, संजू सैमसन ऑल्सो या गॉट अ काउंटी डील, बट ही रिफ्यूज्ड बिकॉज ही वाज अ ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट फॉर एशिया कप। और अब तो काउंटी सीजन में उसको नहीं ले रहे ऑब्वियसली, तो उसका तो डबल लॉस हो गया। बट अश्विन काउंटी वाउंटी नहीं जाके वो एनसीए में ही खेलता रहा, और तो उसका थोड़ा फायदा हो गया। बट फायदा क्या होगा, मुझे लगता है एंड में मुश्किल है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये लोग अपना इमेज बचाने का कोशिश करेंगे और एंड में स्क्वाड चेंज नहीं करेंगे अनलेस देर इज एन इंजरी ऑफ अक्षर पटेल विच इज लाइक वेरी सीरियस इंजरी। अनलेस ऐसा तो होता है तब तक 15 नहीं होगा। 15 will remain 15 as you are saying, हम्म जो या अनाउंस 15 है, unless अक्षर एंड श्रेयस हैव इंजरी तभी हम्म कोई चेंज होगा। हम्म एंड बिकॉज वॉशिंगटन इज गोइंग टू चाइना फॉर हम्म एशियन गेम्स, so he हम्म will go there and Ashwin will be a reserve player, traveling reserve player with them. हम्म He will not be part of squad, but he will be part of like reserves who will हम्म travel with team. So that's हम्म how it will go. हम्म होपफुली मुझे लगता है कि अक्षर विल ऑल्सो पुल अप वेल, उसका हो जाएगा, बस श्रेयस हम्म का ही डाउट है। और मुझे हम्म श्रेयस का भी ये है कि वो 2 मैच भी खेल लेगा तो देर इज कोई पता हम्म नहीं कि कैसा होगा, बट श्रेयस एज अ प्लेयर हम्म आई बिलीव कि वो उसको इंडियन टीम में जरूरत है उस प्लेयर की, यस बिकॉज यस ही कैन हिट सिक्सेस हम्म ऑन स्पिनर्स, जो हम्म कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई भी नहीं करता है। हम्म तो सभी टुक टुक साले ही है मिडिल ऑर्डर हाँ में। वो, हम्म तो ही इज अ बिट लाइक एन आउटलायर इन मिडिल ऑर्डर, तो वो हम्म ठीक हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ये मतलब हम्म बेस्ट है ये सिचुएशन। नहीं, और फिनोमिनल रिकॉर्ड है श्रेयस अय्यर का लास्ट 4 इयर्स। जैसे पंत टेस्ट क्रिकेट में है और सूर्या T20 हम्म, में है, तो श्रेयस ओडीआई में राइट। है। वो ही हम्म हैज बीन सेविंग इंडिया इन ओडीआई क्रिकेट एंड काफी रिमार्केबल नॉक्स, स्पेशली एट होम। आई रिमेम्बर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने सेंचुरी मारा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत सारे सेंचुरीज उसके हैं लास्ट 3-4 साल में। मतलब अच्छा खेल रहा है वो लास्ट 3-4 साल से, और इंडियन कंडीशंस में स्पेशली, मतलब कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है मतलब। तो एंड मुझे तो एवरीवन लगता है एग्री विद उसका द डॉट बॉल सिलेक्शन। परसेंटेज भी उतना कभी भी हाई नहीं रहता, मतलब कंपेयर टू केएल और ईशान किशन जैसे डॉट बॉल्स खेलते हैं, तो श्रेयस का वो पॉजिटिव है। बट वही है, अभी फिटनेस उसका रियली, मतलब कि ये जो टर्न अराउंड हुआ है कि केएल इज नाउ फ्रॉम नॉट फिट टू सुपर फिट, एंड श्रेयस अय्यर हु वाज स्कोर्ड 199 इन अ प्रैक्टिस मैच इन एनसीए, ही इज फ्रॉम गॉन फ्रॉम सुपर फिट टू, मतलब completely fit to again having this injury। ये तो टर्न अराउंड भाई किस्मत है, मतलब कि और क्या मैं बोलूं इसमें।
या श्रेयस अय्यर को भी ज्यादा कुछ हम लोग मजाक उड़ाते हैं, बट क्या ही ज्यादा बोल सकते हैं अरे हम। वो हमारे ग्रुप में सभी एग्री करते हैं कि श्रेयस इज नीडेड एट नंबर 4, बट द थिंग इज कि फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है यार। ऐसे कैसे मींस यार, वो 32 33 भी नहीं है यार इतना बैक इंजरी होने के लिए। एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन तो तब से ही निकल रहे जब वो आया नहीं था। आई थिंक देवांशु भाई उस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे जब वो इंदौर टेस्ट में बैटिंग करने नहीं या आया था। उस समय से ही हम हम्म लोग सब फ्रस्ट्रेटेड है कि हाँ क्या यार, कर रहे दैट वाज रबिश। आई मीन हैं। टेस्ट क्रिकेट है यार। लोग टूटी हुई टांग पे बैटिंग करने आ जाते हैं। बॉलिंग कर रहा था वो यार, क्या नाम है, थिक्साना भी। वो हम्म एक टांग के ऊपर उसने 2 3 ओवर स्लॉग में डाल के गया वो फाइनल ओवर्स के अंदर। ऐसा क्या हम्म हो गया कि वो कुछ नहीं कर पाया। हम्म एंड ये पॉइंट ये है कि दीज, हमने पहले भी डिस्कस करा है, इंडियन प्लेयर्स आर ट्राइंग टू कॉपी विराट कोहली इन हम्म फिटनेस। वो जिम हम्म में ना डेडलिफ्ट करना एंड वो सारी चीजें। आई थिंक ये अय्यर का प्रॉब्लम वही है, ही शुड नॉट गो फॉर दैट डेडलिफ्ट एंड एवरीथिंग। उसको अपना गेम देखना चाहिए। अभी अच्छा खासा हम्म टूर्नामेंट होता, अभी बाहर निकलने के चांसेस बन गए उसके टूर्नामेंट से। हम्म राइट राइट राइट। वन गुड थिंग इज एटलीस्ट मैनेजमेंट और हम लोग एक कॉमन पॉइंट पे एग्री करते हैं कि श्रेयस इज नीडेड फॉर द टीम। राइट राइट। ऑब्वियसली भाई दे उतना परफॉर्मेंसेस तो होपफुली इतना मतलब देखे हैं वो लोग भाई भी मतलब श्रेयस के कि बाद सैमसन के ही परफॉर्मेंस अच्छे हैं ओडीआई में। हाँ देन वो एनीवे वो नहीं, लोग one question, one question. Where is the first match? Australian series? आई थिंक राजकोट, इंदौर है ना। इंदौर है। हाँ इंदौर अच्छा, में फर्स्ट फर्स्ट। नहीं, सेकंड इज इंदौर या फर्स्ट इज इंदौर? लेट मी एक्चुअली सी। मोहाली फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट मोहाली, इंदौर, हाँ थर्ड वन सो फर्स्ट राजकोट। इज एट मोहाली, फर्स्ट मैच इज एट मोहाली, सेकंड इज एट Hmm. इंदौर एंड थर्ड इज एट राजकोट। हम्म, Okay, okay. So as I mentioned also, like after 2017 Champions Trophy final, हम्म Jaddu and Ashwin will play first time together in ODI. yeah. And हाँ also So wow. So we are so back that's to time machine has taken us 6 years before. 6 years before. And also I was hoping before this team announcement कि इंदौर में ODI है तो, and it's हम्म a very happy hunting ground for Rohit Sharma. I हम्म was thinking एक डबल मार दे वो तो मजा आ जाए। मतलब इट्स बीन हम्म इयर्स कि उसने सेंचुरी भी मारी हो एंड एवरीथिंग, क्योंकि अच्छा पिच होता है एंड एवरीथिंग। पता नहीं yeah, व्हाट इज देयर प्लान। फर्स्ट राजकोट इनिंग में ये स्कोर। लोग खेलेंगे ना। वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो राजकोट में खेलेगा। फुल हाँ, वर्ल्ड कप यस। स्क्वाड प्लस प्लस अश्विन एंड वॉशी। फुल वर्ल्ड कप स्क्वाड प्लस अश्विन एंड वॉशी, दैट इज द स्क्वाड फॉर द थर्ड ओडीआई। So I just found an interesting stat. Virat हम्म Kohli rested in first 2 ODI matches against Australia. So now हम्म Virat Kohli missing an ODI match from 2011 to हम्म 2020. He missed 20 times. हाँ And from 2021 to 2023, he has missed 21 times. मेंटल So मेंटल ब्रेक चाहिए भाई वही हाँ, उसको अरे मेंटल ब्रेक नहीं, इंस्टाग्राम ब्रेक। काश, मैं तो सोच रहा हूँ कल मेरा बॉस मुझे फोन करके बोल दे भाई तुझे थोड़ा मेंटल ब्रेक चाहिए, थोड़ा ब्रेक ले ले भाई। देख देख शिखर, इंडियन 11 आ गई है, तू मेंटल ब्रेक ले जाके। यार दिस ये इज ये क्रेजी। दोनों मैन, दे आर बिगर देन द टीम नाउ। राइट 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 राइट। हाँ So यार। that is the culture, right? That is Uh, uh, the Indian culture anyway. Individuals are always bigger so than team. as just an example, David Warner has not Hmm. yet announced any kind of retirement Hmm. from any format. And I think Hmm. last week Ian Chappell has written an article where he's saying that David Warner will be missed. so Hmm. so नो ही that's टोल्ड kind कि of जैन में वो ही विल बी रिटायरिंग। हाँ सिडनी जैन में टेस्ट, शायद सिडनी सिडनी टेस्ट टेस्ट में में समथिंग रिटायर उसने किया। बोल दिया कि आई विल प्ले अंटिल एंड ऑफ दिस ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर आई okay, विल बी। okay, एक्चुअली okay, उस पे okay. काफी प्रेशर था डेविड वार्नर पे, तो रिटायर। चलो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं यार। इंडिया तो बहुत या बोरिंग हो गया ऑलरेडी। हम कर लिए काफी बात, मतलब बोरिंग तो कभी नहीं होता हमारे लिए, बट काफी बात हो गई। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अगर मैं देखूं तो
Maxwell is back, Steve Smith is back, and also Cummins. Cummins and Stark are back, right? Yeah. So I heard ki Cummins, he was with the team in South Africa, but he didn't play because of his wrist injury. Yes, yeah, correct. and He was one important change they have made is Head is now most certainly going to miss out Miss on out. the World Cup. So Matthew Short has been actually called up for Okay. this. Yeah, trying to Matthew show the Short. squad actually. It's So that Steven Smith is still not well. He's taking injections But to he play. still practice कर रहा है बोल के सुना मैं. He started practicing. He started practicing, but Hmm. with injections. So So, Cameron yeah. Green, बहुत सारे ऑलराउंडर्स है, शॉन अबॉट, ग्लेन But मैक्सवेल. ओपनिंग कौन करेगा फिल वार्नर के no, साथ? शॉट. नहीं, Matthew Short. just a moment. Hold. They have lot of all-rounders, but not an spinning all-rounder except Glenn Maxwell. अब Maxwell is okay as a spinning all-rounder. ठीक है, वो is just like a part-time. हाँ, So एक्चुअली मैं वही सोच रहा था, आज हेड का मैं देख रहा था बॉलिंग, एक्चुअली उसकी बॉलिंग को काफी मिस करेंगे. हेड एक्चुअली right. काफी मैक्सवेल से बेटर ऑफ स्पिनर है वो, एक्चुअली मैक्सवेल Correct. से ज्यादा बेटर ऑफ स्पिन करता है. लाबुशेन पता नहीं लेग स्पिन करेगा या नहीं, वो भी थोड़ा बहुत तो करता ही है, बट वो मार खा जाता है. लाबुशेन करेगा क्या अभी? लेकिन लाबुशेन है भी क्या वर्ल्ड कप हाँ, खेलेगा? आई हैव नो क्लू. अभी तो लग रहा है आ ही जाएगा. अभी मैथ्यू शॉट या लाबुशेन में से कोई एक आएगा टीम में, बट हिट they के. have also not decided yet कि कौन आएगा. बट लाबुशेन ने जैसा शिखर, परफॉर्म किया है, like you said आना कि चाहिए. Green if opens with Warner, then there is most likely Labu आएगा. Means I think we will see it in this 2 1-days whether who will open. उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि who will come in place of it. Yeah, Green, Warner, Smith, Labuschagne, and Mitch Marsh. Obviously, Mitch Marsh will be there, and maybe Stoinis at number 6. Then comes the bowlers, I guess. Yeah, Maxwell at number 6 and Stoinis at number 7. That's how it's going to be. Yeah. Zampa ने वैसे अच्छी बॉलिंग की थी यार, वो एक मैच के लिए बदनाम हो गया, बट क्लासन को 2 बार बोल्ड उसी ने किया है, मतलब बाकी 2 मैचेस में. Ashton Agar is not in squad, right? Ashton Agar is not in squad, I guess. No, he's Yeah, not he's in on squad. parental leave. in that injury list में है वो आगा. हाँ, इंजरी में है वो. And he's on parental leave as well. So both of them has coincided. Okay. Klassen ka innings, man, was then there were few sixes which just went over the boundary, which could have been caught on Zampa's over. Man, it is dangerous to watch cricket in South Africa. भाई मुझे तो क्राउड के लिए हमेशा डर लग रहा था, वो मैच का हाइलाइट्स में देख रहा था, तो मुझे लग रहा था ये लोग जैसे मार रहे हैं भाई, कोई किसी का भी सर फट सकता है. Those are very flat sixes. I mean, height भी नहीं था. They were just traveling at very high speed also. Yes, all yes, those shots. तो वो it's very difficult. गेल को मजा आता है वहां पे बैटिंग करने में, बहुत मारा उसने साउथ अफ्रीका में. हाँ, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया भी वीकेंड 11 ही खिलाएगा यार, वो लोग भी टाइम पास ही करेंगे अभी वर्ल्ड कप के पहले. मतलब कोई भी नो वन वांट्स टू शो देयर कार्ड्स, लाइक इंडिया डोंट वांट टू एक्सपोज कुलदीप. सो आई थिंक ये लोग भी थोड़ा टाइम पास करेंगे. स्टार्क, Cummins नहीं खेलेगा मुझे लगता है. Cummins he won't play in first 2 games. स्टार्क भी नहीं खेलेगा मुझे लग रहा है, स्टार्क भी डाउटफुल है. हेजलवुड ही खेलेगा, वो थोड़ा या वर्कहॉर्स है. एलिस और हेजलवुड खेलेंगे शायद मुझे लगता है. हेजलवुड थोड़ा वर्कहॉर्स है एक्चुअली, उसको अच्छा लगता है, मतलब उसको लगता है मैं बॉलिंग करता रहूं, मतलब जितना मजा आता है बॉलिंग करने में, भले ही मैं पिटता रहूं जो भी हो. तो ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर. Zampa का इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे whether they will play him or not. हाँ, right. Maybe they will play him and to give him some match fitness वहां पे pitches पे. But he played all the ODIs, so I don't think they need to give him that much also. But yeah, they may play Tanveer Sangha and Max. मतलब यही लाबुशेन को बोल देंगे लेग स्पिन कर भाई.
हार जाएंगे वैसे भी वो लोग। वर्ल्ड कप के पहले तो फेमस है सीरीज हारने के लिए। वो लोग भाई बोलेंगे हम ये हार देखो, जाएंगे। मुझे लगता है ये लोग हार के ना हमें नंबर 1 भेज ही देंगे हम्म। साला। एक्सपेक्टेशन नंबर और वन बढ़ा नहीं देंगे। नंबर 1 नहीं पहुंचने का भाई, वो ये नहीं पहुंचने का, चाहे भाई कुछ भी हो 2-1 जाए। सीरीज जीत गए, एटलीस्ट 1-0 सीरीज जीत गए ना, तो हम्म नंबर 1 हो जाएंगे हम लोग। हम्म। आई थिंक ये सब कॉन्फिडेंस का ही खेल है। मैं तो जस्ट लाइक पर्सनली विद, मेरा हमेशा ये सोचना है कि आप ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से हराओ, मतलब हम्म बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे साउथ अफ्रीका ने करा है ना। हम्म उनको किसी भी मल्टी टूर्नामेंट से पहले कोई मौका मत दो। इंडिया ने उनको ये बीजीटी में भी मौका दे दिया था वापसी हम्म आने का। ठीक है, हम्म उनको बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनको 4-0 से हराते हैं ना, WTC में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट रहता है इस चीज का। हम्म, हम्म तो वो ये लोग है ना समझते नहीं है। चलो ठीक है, हम्म ये राहुल द्रविड़ ज्यादा जानता है, हम कम जानते हैं। तो हम्म हाँ इसलिए यार, मुझे लगता है स्काई भी खेलेगा यार, बिकॉज ऑन इंडियन पिक्चर्स वो डिफरेंट ही ब्रीड है वो। हम्म। हाँ, उसको इंदौर में ऐसे, स्काई डबल 100 मार दे, ऐसा भी हो सकता है भाई। भाई एवरेज एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 316 है यार वहां पे। साला, अभी नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे ये और अगर टीम। जैम्पा नहीं खेलेगा देन ही हैज अ फ्री लाइसेंस आल्सो, मतलब। और स्टार्क वार्क भी अगर नहीं होंगे, स्टार्क ही उसको आउट किया था आई थिंक 2 बार तो स्टार्क, तीनों बार स्टार्क ही आउट किया था ना उसको रिसेंट हाँ हाँ। ओडीआई सीरीज में। तो वो नहीं देखो यार, होगा तो। पता है जैम्पा ने बॉलिंग अच्छी करी हो या नहीं करी हो, हम्म ठीक है, बात यह है कि जैम्पा ने 10 ओवर में 113 रन दिए हैं। हम्म ठीक, और उसको सारी दुनिया ने देख लिया है कि जैम्पा को कैसे मारा जा सकता है। तो हम्म वो एक बहुत बड़ी बात है। हम्म। वो भाई इंडियन बैट्समैन भी, मतलब उनको पता तो लग ही गया कि इसको भी कैसे हैंडल करना है, तो यू नेवर। राइट राइट। On that चलो, note, guys, ending this हम्म video. It was great pleasure talking to you. Let's see this series starting on Friday. Second match is on Sunday. तो हमारे रिजर्व टीम को देखते हैं क्या करते हैं। और मेन टीम विल प्ले 1 ODI, so that will be the most interesting ODI, I think, the राजकोट ODI. तो देखते हैं क्या यस, होता है। चल, ओके, थैंक यू, चलो guys, bye बाय। bye bye.